Children, how are you all? I hope you all are fit and fine, watching the videos and completing your work. So children, watch the videos regularly and complete your work. Children, read the chapters, learn the spellings because there are a lot of difficult spellings in computer. So children, write and learn the spellings many times and try to understand the meaning also. So children, let us start today's video. In today's videos, children, we are going to do book exercise. That too, last question of this is this chapter. So children, we were doing chapter 5, turning on and off a computer, and we were on the last exercise, that is question number E. So in the previous video, children, we did question number D, and today we are going to revise question number D, and then we'll do question number E. So question number E is the last question of this chapter. So let us start. So children, in question number D we have write, W-R-I-T-E, write, T-F-O-R for true, T-R-U-E, true, and A-N-D, and, F for, F-O-R for false statement. So here we are going to read out the statements and tell whether they are true or false. अगर true है तो हम capital T लिखेंगे और अगर false है तो हम capital F लिखेंगे. Now children, अब यहाँ पे question number D का 1 जो 1 है उसमें हमारे पास है UPS stand, S-T-A-N-D, stands for, F-O-R for uninterrupted power, P-O-W-E-R, power, uninterrupted power supply, S-U-P-P-L-Y, supply. Now statement 2, second हमारा statement है, second statement है children, let us read. A computer, हमारा जो second statement है, coming back to the page, computer cannot, C-O-M-P-U-T-E-R, computer, C-A-N, can, computer can work without electricity. A computer can work without electricity. A computer can work without electricity. Then, third one children, our third statement is we can, C-A-N, can switch, S-W-I-T-C-H, switch off the, T-H-E, the computer, C-O-M-P-U-T-E-R, D-I-R-E-C-T-L-Y, directly. We should turn off our computer directly. So let us read children. So as we had studied in the previous video also, and we had discussed while reading the chapter also, that UPS stands for uninterrupted power supply. So children, UPS का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि कंप्यूटर को बिना रुके पावर सप्लाई करता रहता है. तो यहाँ पे चिल्ड्रन, एज यू नो कि जब लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर बंद हो जाता है. When there is power cut off, the computer gets switched off. अब यहाँ पे चिल्ड्रन, अगर आपका कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाता है तो आपका काम रुक जाता है. योर वर्क गेट इंटरप्टेड और गेट स्टॉप्ड. आप अपना काम वहीं पे रोक देते हो, आपका काम रुक जाता है. लेकिन अब हमने यहाँ पे सप्लीमेंट रखा हुआ है, एक दूसरा ऑप्शन रखा हुआ है जिसका नाम है यूपीएस. जब लाइट चली गई तो हम यूपीएस को ऑन रखते हैं और हमारा जो पावर सप्लाई कंप्यूटर का ज़रूरत है पावर सप्लाई का, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द यूपीएस. वो सप्लाई पूरा करता है यूपीएस. इससे क्या होता है, आपका काम चलता रहता है, आपके काम में कोई किसी भी तरह का रुकावट नहीं आता. तो रुकावट मतलब अनइंटरप्टेड. यहाँ पे इसीलिए इसका नाम पड़ा है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, सप्लाइंग पावर
टू द कंप्यूटर विदाउट एनी इंटरप्शन। तो कंप्यूटर को पावर सप्लाई करना बिना किसी रोक टोक के, उसे हम कहते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब यहाँ पे चिल्ड्रन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इसलिए हम यहाँ पे T फॉर ट्रू लिखेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट, कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। जो कंप्यूटर होता है ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर सकता है। तो इज इट ट्रू चिल्ड्रन? कंप्यूटर क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर सकता है? नो, अ कंप्यूटर कैन नेवर वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कंप्यूटर के को इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलता है। It runs because of electricity. So this statement is wrong and you will write here F for false. Similarly, last वाला, we can switch off the computer directly. हम कंप्यूटर को directly off कर सकते हैं। This statement is also wrong because in the chapter we have studied and understood that we should never switch off a computer directly. हमें कंप्यूटर को कभी भी directly नहीं बंद करना चाहिए। So this statement is false and you will write F for false here. So here under question number D we had three statements and we have studied, read and understood and written the answer also. The first statement, UPS stands for uninterrupted power supply, is true. So you have written here T for true. Computer can work without electricity, false. We can switch off द कंप्यूटर डायरेक्टली, हम कंप्यूटर को डायरेक्टली भी बंद कर सकते हैं। सो यू विल राइट F फॉर फॉल्स हियर। सो चिल्ड्रन विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर डी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर ई। सो ये तो हमने पिछले वीडियो में किया था, आज का हम अपना काम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। अब चिल्ड्रन एज वी नो क्वेश्चन नंबर ई इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर ई है ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है और हर चैप्टर में वी हैव question number E as application based question. So whatever we have studied and understood we are going to apply in our life. So application का मतलब होता है अपने नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना या अपने लाइफ में यूज़ करना या अपने लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना, और या ऐसी कोई परेशानी आना जहाँ पे यू आर गोइंग टू इंस्ट्रक्ट एनीवन और टेल एनीवन, तो उस वहाँ पे भी हम अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ई है चिल्ड्रन APPLICATION, एप्लीकेशन बेस्ड, BASED, बेस्ड क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन। दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। नाउ चिल्ड्रन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है इज आस्था ट्राई टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर। आस्था इज अ गर्ल हु ट्राई टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर। आस्था एक लड़की है जिसने कंप्यूटर को ऑन करने की कोशिश की। नाउ आफ्टर टर्निंग ऑन द पावर, मेन पावर, यूपीएस, सीपीयू एंड मॉनिटर। सो आस्था ने क्या किया? आस्था ने सबसे पहले मेन पावर से कंप्यूटर को ऑन किया, फिर उसके बाद उसने यूपीएस को ऑन किया, देन उसने सीपीयू को ऑन किया और मॉनिटर को ऑन किया। Then what happened? She was not able to do any work on it. लेकिन she was not able to do any work on it. वो कोई काम उस पर नहीं कर पा रही थी। तो let us see. So help her to open the desktop and start working. अब children, as you know, after switching on the monitor, you get a window. Window पे it asks for the password. अब यहाँ पे उसने मॉनिटर तो ऑन कर लिया, विंडो भी खुला होगा, लेकिन उसके बाद उसको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे दिया है, जो आस्था है शी स्विच्ड ऑन द कंप्यूटर फ्रॉम द मेन सप्लाई। उसने मेन सप्लाई से स्विच ऑन कर दिया, बिल्कुल सही। सबसे पहले हम मेन सप्लाई से कंप्यूटर को ऑन करते हैं। देन उसने क्या किया? शी स्विच्ड इट ऑन फ्रॉम द शी स्विच्ड ऑन द यूपीएस। सेकेंड स्टेप में उसने यूपीएस भी ऑन कर दिया। थर्ड स्टेप में इसने सीपीयू भी ऑन कर दिया। देन उसने मॉनिटर भी ऑन कर दिया, बट स्टिल शी इज नॉट एबल टू डू एनी वर्क ऑन द कंप्यूटर। अब आगे उसको पता नहीं है, तो नाउ वी विल टेल हर दैट देयर इज अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ हर। दैट स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप स्क्रीन। हम उसको डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। दिस डेस्कटॉप स्क्रीन का मतलब होता है, दिस डेस्कटॉप स्क्रीन मीन्स इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड। आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर वी गेट अ स्क्रीन चिल्ड्रन, वी गेट अ डेस्कटॉप स्क्रीन हम इसे नहीं कहेंगे, हम इसे विंडो कहेंगे। हमें सबसे पहले जो विंडो मिलता है, उस विंडो पे वी गेट अ मैसेज
टू टाइप द पासवर्ड। हमको मैसेज मिलता है जहाँ पे वी नीड टू टाइप द पासवर्ड, हम वहाँ पे पासवर्ड टाइप करते हैं। सपोज दिस इज अ विंडो, ये आपका विंडो है, आपने मॉनिटर ऑन कर दिया, आफ्टर स्विचिंग ऑन द मॉनिटर यू गेट अ विंडो, दिस विंडो इज कॉल्ड वेलकम विंडो, हम इसको वेलकम विंडो कहते हैं। अब यहाँ से चिल्ड्रन इट विल आस्क फॉर अ पासवर्ड, यहाँ पे वो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, यू विल टाइप द पासवर्ड इन द बॉक्स, दिस बॉक्स, एंड देन यू विल क्लिक ऑन गो एरो। When you click on this go arrow children, you will get another window, आपको अब एक विंडो मिलेगा जिसको हम फाइनल विंडो कहते हैं, जिसको हम फाइनल विंडो कहते हैं। फाइनल विंडो का मतलब फ्रॉम हियर वी आर एबल टू परफॉर्म एनी टास्क, यहाँ से हम कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम कोई भी काम कर सकते हैं का मतलब है कि जो भी हमको यहाँ पे विंडो मिलेगा उसे हम डेस्कटॉप विंडो कहेंगे। डेस्कटॉप विंडो इज द फर्स्ट विंडो फ्रॉम वेयर वी कैन परफॉर्म एनी टास्क। डेस्कटॉप विंडो पहला विंडो होता है जहाँ से आप किसी भी काम को कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन आफ्टर स्विचिंग ऑन द मॉनिटर आस्था गेट्स अ विंडो, दिस विंडो इज कॉल्ड वेलकम विंडो, इस विंडो को हम वेलकम विंडो कहते हैं। अब वेलकम विंडो का मतलब क्या होता है, वेलकम विंडो पे हमसे कंप्यूटर जो हमारा है वो हमसे पासवर्ड मांगेगा, यू विल टाइप पासवर्ड हियर, और इसके अंदर पासवर्ड टाइप करेंगे, फ्रॉम हियर you will type password and then you will click on this arrow, आप इस arrow पे क्लिक करेंगे। इस arrow पे क्लिक करने के बाद children you will get another window, आपको एक और विंडो मिलेगा, this window is called the desktop window। now you will get another window, this is the first window, इसको हम कहते हैं first window that appears after switching on the computer। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद जो हमें सबसे पहला विंडो मिलता है उसको हम फर्स्ट विंडो कहते हैं, दिस इज डेस्कटॉप विंडो, this is desktop window, this is desktop window, या फिर कह सकते हैं विंडो डेस्कटॉप, हम दोनों कह सकते हैं, हम विंडो डेस्कटॉप भी कह सकते हैं या डेस्कटॉप विंडो भी कह सकते हैं। सो चिल्ड्रन दिस इज द फर्स्ट विंडो विच वी गेट इन फ्रंट ऑफ अस और दैट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अस आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्विच ऑन करने के बाद जो सबसे पहला विंडो हमारे सामने खुलता है जिससे हम काम कर सकते हैं उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप विंडो। नाउ योर कंप्यूटर इज रेडी टू वर्क, नाउ यू विल टेल आस्था हाउ टू परफॉर्म एनी वर्क ऑन द कंप्यूटर, और स्टेप बाय स्टेप इतना उसने सीख लिया। अब आगे का स्टेप भी आप उसे बताएंगे। यू विल गो टू स्टार्ट बटन, यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, फ्रॉम देयर यू विल गेट द मेन्यू, फ्रॉम द मेन्यू यू विल click any program, whichever program you want to start, and you will perform your work. So this is what you are going to tell Astha. ये सारी बातें आप आस्था को बताएंगे। In this way she will be able to perform the task which she wants to do. So let us write and understand the question. So children, let us write the question. Question is Astha, A-S-T-H-A, Astha tried, T-R-I-E-D, tried to, T-O-2, switch on, S-T-W-I-S-W-T-C-H, switch on, O-N, on a computer, C-O-M-P-U-T-E-R, computer. Then second step, after, A-F-T-E-R, after turning, T-U-R-N-I-N-G, turning on, T-H-E, the main power, M-A-I-N, main, P-O-W-E-R, power, main power, UPS, U-P-S, UPS, then CPU, C-P-U, CPU, and then monitor, and M-O-N-I-T-O-R, monitor. She, C-H-E, she was not, N-O-T, not able to, she was not able to do, D-O, do any work on it, W-O-R-K, work on it. इतना खोलने के बाद भी she was not able to do any work on it. Help her, H-E-R, her, to open the
desktop, D-E-S-K, desk, T-O-P, top, desktop, and start, S-T-A-R-T, start working, W-R-K-I-N-G, working. अब चलिए, मैंने आपको क्वेश्चन समझाया. नाउ लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड इट once again. So children, as the question is very big, you will read it 2-3 times. आप जब भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, you are very small, you are too small to understand the question. You are too small to understand the question. So read it many times. आप किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, आप देख के घबराना नहीं, आप एक एक करके लाइन बाय लाइन यू विल रीड इट. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में हम पहले पढ़ते हैं. आस्था, A-A-S-T-H-A, आस्था, T-R-I-E-D, tried to switch on a computer. जो आस्था है, she tried to switch on a computer. उसने कोशिश किया कंप्यूटर को ऑन करने का. So आस्था tried to switch on a computer after turning on the main power. As you know children, the first step which we should follow in order to turn on a computer is to switch on the मेन पावर. यानी कि हमारा जो कंप्यूटर होता है हम उसे प्लग इन करते हैं. उसका एक प्लग होता है, एक वायर होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. तो हम उस वायर को प्लग में लगाते हैं और लगाने को तो हम हमेशा लगाए रहते हैं, लेकिन जब हमें कंप्यूटर को ऑन करना होता है तो हम प्लग के बगल वाला जो स्विच होता है उसको ऑन करते हैं. तो उस पूरे स्विच बोर्ड को हम मेन पावर कहते हैं. तो हम सबसे पहले कंप्यूटर को वहाँ से ऑन करेंगे. ठीक है, अब हमने वहाँ से ऑन कर दिया. ऑन करने के बाद आस्था ने क्या किया? आस्था ने भी वही किया. उसको पता था कि अगर कंप्यूटर को ऑन करना है तो सबसे पहले आप कंप्यूटर को मेन स्विच से ऑन करोगे. यानी स्विच बोर्ड पे जो कंप्यूटर का स्विच है जहाँ उसका प्लग लगा हुआ है वहाँ से उसको ऑन करोगे. सो दिस मच आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. सो दिस मच इवन आस्था न्यू. तो फर्स्ट स्टेप शी वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ. नाउ अब सेकेंड स्टेप में नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर टर्निंग ऑन द मेन पावर. अब उसने मेन पावर ऑन कर दिया. शी ऑल्सो नोज द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्विच ऑन द यूपीएस. शी हैज स्विच्ड ऑन यूपीएस ऑल्सो. यूपीएस भी ऑन कर दिया. नाउ आफ्टर दैट शी नोज शी शुड स्विच ऑन द सीपीयू. दैट ऑल्सो शी हैज डन. ये भी उसने कर लिया. सबसे पहले उसने मेन पावर से ऑन किया, यूपीएस ऑन किया, सीपीयू ऑन किया और उसके बाद उसने मॉनिटर भी ऑन कर लिया. नाउ मॉनिटर ऑन कर दिया. अब मॉनिटर ऑन करने के बाद उसको एक विंडो मिला होगा. अब विंडो के बाद वहाँ पे उसको पता नहीं है कि क्या करना है, इसलिए वो कंप्यूटर में आगे काम नहीं कर पा रही थी. तो नाउ चिल्ड्रन यू आर गोइंग टू टेल हर कि व्हाट नाउ शी हैज़ टू डू इन ऑर्डर टू परफॉर्म द टास्क ऑन द कंप्यूटर. अब हमसे बोला जा रहा है कि हेल्प हर टू ओपन डेस्कटॉप. यानी कि शी हैज़ रीच्ड टिल वेलकम विंडो. वेलकम विंडो तक वो पहुँच गई है. अब वेलकम विंडो के बाद पर जो जाकर के जो चीज़ें करनी है वो हम उसे बताएंगे और उसके बाद डेस्कटॉप कैसे खुलेगा वो उसको बताएंगे और डेस्कटॉप से फिर वो किसी भी प्रोग्राम को ऑन कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, दैट वी विल टेल हर. तो चिल्ड्रन रीड द लास्ट लाइन, हेल्प हर टू ओपन डेस्कटॉप. अब हमें उसे किस लिए हेल्प करना है? डेस्कटॉप को ऑन करने के लिए हेल्प करना है. तो यहाँ पे हम उसे हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू स्विच ऑन द डेस्कटॉप, मतलब स्विच टू द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप में पहुंचने का हम उसे रास्ता बताएंगे या फिर हाउ शी विल रीच डेस्कटॉप, दैट वी विल टेल हर. एंड देन वी विल ऑल्सो टेल हर हाउ टू स्टार्ट अ प्रोग्राम. तो आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. लेट अस रीड इट वंस अगेन, क्योंकि हमें किसी भी क्वेश्चन को जब तक हम अच्छे से नहीं समझेंगे हम आंसर नहीं कर पाएंगे. सो लेट अस रीड इट मेनी टाइम्स. फर्स्ट थिंग इज चिल्ड्रन, आस्था ट्राइड टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर. आस्था tried to switch on a computer. She, after turning on the main power, first step is turn on the main power. After turning the main power, UPS उसने फिर UPS ऑन किया. Then CPU भी उसने ऑन किया. Then monitor, she switched on the monitor. So she has switched on all the parts of computer, and that too by following the step by step method. उसने वो मॉनिटर तक चली गई. जब उसने मॉनिटर ऑन किया होगा चिल्ड्रन तो ऑटोमेटिकली उसके सामने एक विंडो खुला होगा. नाउ यू कैन टेल मी कि व्हाट इज दिस विंडो, व्हाट डू यू कॉल दिस विंडो. आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर द विंडो विच यू गेट इज नोन एज वेलकम विंडो.
जो हमारे पास मॉनिटर ऑन करने के पास विंडो आता है सामने हमारे, उसको हम वेलकम विंडो कहते हैं। तो शी रीच्ड टिल वेलकम विंडो। अब आगे का प्रोसीजर उसे नहीं पता, इसलिए शी इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म एनी टास्क ऑन द कंप्यूटर। सो आगे, नाउ वी आर गोइंग टू हेल्प हर टू ओपन द डेस्कटॉप and start working. Now what we have to do, we will help her in reaching the desktop तक पहुँचने के। So children, after reaching the windows, welcome window, you will, what all you will do, you will tell her. So now we are going to help her how to reach the desktop window. So children, question आपको समझ में आ गया? Let us rub this, हम इसे मिटाएंगे और आगे का करेंगे। तो यहाँ पे इतना हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, आफ्टर रीचिंग द वेलकम विंडो, सो फर्स्ट विंडो विच यू गेट आफ्टर स्विचिंग ऑन द मॉनिटर, जैसे आपने मॉनिटर ऑन किया, यू विल गेट अ विंडो, देयर इज अ विंडो इन फ्रंट ऑफ यू। चिल्ड्रन, दिस विंडो इज कॉल्ड वेलकम विंडो, हम इसको वेलकम विंडो कहते हैं। दैट मीन्स कंप्यूटर इज वेलकमिंग यू टू द विंडोज, आपको कंप्यूटर विंडोज में वेलकम कर रहा है। नाउ चिल्ड्रन, इसको हम कहेंगे वेलकम विंडो। नाउ हाउ डज दिस विंडो लुक, ये कैसा दिखता है, वेलकम विंडो कैसा दिखता है वो अब हम देखते हैं। वेलकम विंडो, अब चिल्ड्रन वेलकम विंडो पे हमारे पास पीछे पहले तो हमारे पास एक विंडो का फ्लैग होगा, हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको वेलकम विंडो कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऐसा एक फ्लैग होगा, इसके पीछे कुछ ऐसा बना होगा बैकग्राउंड पे। सेटिंग अलग भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे सेटिंग हो, तो ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे चिल्ड्रन हमसे पूछेगा, कंप्यूटर विल आस्क फॉर द पासवर्ड। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि क्योंकि कंप्यूटर इज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट, we keep all our important documents or files in the computer, so हमारे कंप्यूटर को कोई और नहीं छू सकता है। we don't want anyone else to use our computer. For that children, we keep security pin here, जिसे हम पासवर्ड कहते हैं, और उस पासवर्ड के हमें वो पासवर्ड सिर्फ हमें पता होता है, इसलिए जब भी कोई और हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप छूता है तो कंप्यूटर उससे पूछता है पासवर्ड के लिए, ये जानने के लिए वेदर द कंप्यूटर यूज्ड बाय द पर्सन इज अ राइट पर्सन और नॉट, द पर्सन हुएवर इज यूजिंग द कंप्यूटर इज अ राइट पर्सन और नॉट। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा टाइप पासवर्ड, तो आप यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे वो डॉट्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो दिस इज द पासवर्ड, यू हैव फेड द पासवर्ड, आपने पासवर्ड फेड कर दिया है, फीड कर दिया है। नाउ यू विल click on go arrow. This small circle has a arrow. This arrow is known as go arrow. तो ये फर्स्ट स्क्रीन है जो हमारे सामने आता है। उसके बाद जब हम go arrow पे क्लिक करेंगे तो we will get another window. This window is called the first window that appears after switching on the computer. एक बार आपने कंप्यूटर को ऑन करने के बाद आपके सामने जो सबसे पहला स्क्रीन आता है उसको हम डेस्कटॉप विंडो कहते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ गो एरो पे क्लिक करेंगे, ये है गो, ये दिस इज गो एरो, GO गो एरो। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे यू विल गेट अनदर विंडो विच इज नोन एज, जिसको हम कहते हैं डेस्कटॉप विंडो। तो एक बार फिर हमको यहाँ पे ये फ्लैग दिखाई देगा, दिस इज विंडो फ्लैग and this is called desktop window, DESK, desktop, top window, WINDOW, window. This is your desktop window. From here children you can perform any task, जो भी काम आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हो। अब children let us talk about desktop window. अब desktop window कैसा होता है, आप सभी को पता है कि जो desktop window होता है उसमें हमारे पास यहाँ पे ये आपका desktop window है। First window that appears in front of you, from where you can perform any task, जहाँ से आप कोई भी टास्क कर सकते हो। So this is the desktop window, इसे हम desktop window कहते हैं, desktop window, WINDOW window। अब चिल्ड्रन यहाँ पे हमारे पास नीचे एक टास्क बार होता है, इसको हम टास्क बार कहते हैं,
BASKBAR, बार। अब टास्क बार पे राइट बॉटम साइड पे एक राउंड बटन होता है, एक गोल सा बटन होता है जिसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। दिस बटन इज नोन एज स्टार्ट, START, स्टार्ट बटन। अब इस बटन पे भी हमारे पास फ्लैग बना होता है, ये वाला फ्लैग, विंडो वाला फ्लैग होता है। इसमें भी हमारे पास विंडो फ्लैग होता है। सो दिस स्टार्ट बटन चिल्ड्रन, आफ्टर गेटिंग दिस डेस्कटॉप विंडो यू विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, यू विल क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन। फ्रॉम हियर चिल्ड्रन, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस यू विल गेट अ मेनू। आपके सामने मेनू खुलेगा, दिस इज मेनू। ये आपका मेनू हो गया, ये आपका सब मेनू हो गया, मतलब मेनू के अंदर मेनू। तो यहाँ से आपको जो भी प्रोग्राम आपको क्लिक करना है या फिर ओपन करना है, यू कैन ओपन फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे आपको ऑल प्रोग्राम भी नीचे लिखा होता है, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम लिखा होता है। अगर आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो आपको बड़ा सा मेनू खुल जाता है। बाई स्क्रॉलिंग इट, आप उसको ऊपर नीचे कर करके दूसरा जो भी आपको प्रोग्राम खोलना है आप खोल सकते हो। सपोज चिल्ड्रन यू वांट टू स्टार्ट MS पेंट, अगर आपको MS पेंट स्टार्ट करना है तो यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, you will get a menu. From the menu you will search for window accessories. आप window accessories पे जाएंगे। window accessories पे जाने के बाद चिल्ड्रन, as paint program comes under window accessories, it is sub program of a window accessories, तो आपके सब मेनू में वो मिलता है। तो आप जब window accessories के डाउन एरो की पे क्लिक करेंगे तो you will get list of program. in that you will search for पेंट प्रोग्राम। आप पेंट ढूंढोगे, आप उस पर क्लिक करोगे और उस काम को आप वहाँ से कर सकते हो। सो चिल्ड्रन, दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट अ कंप्यूटर एंड यू विल स्टार्ट अ प्रोग्राम फ्रॉम द डेस्कटॉप। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, फिर भी मैंने आपको बता दिया, यू शुड नो, बिकॉज nowadays we all are using the computer, whether you are studying in class 1 children, you are also using a computer. In future you are also having programs like paint program, so you should know all these things. और ये सारी चीज़ें कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, ये तो हम सुन करके सीख लेते हैं। तो ये सभी आज इस समय इस कोविड टाइम में वी ऑल आर यूजिंग द कंप्यूटर्स, हम सबके घर में कंप्यूटर है और हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। वी आर डूइंग ऑनलाइन क्लासेस और कंप्यूटर वगैरह के प्रैक्टिकल्स भी कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, डेस्कटॉप विंडो से जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो मेनू खुलता है। मेनू में वी हैव ऑल प्रोग्राम से वी विल गो सर्च फॉर द विंडो एसेसरीज। विंडो एसेसरीज W से शुरू होता है, तो वी विल स्क्रॉल द मेनू, हम मेनू को ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे। फ्रॉम देयर चिल्ड्रन वी विल सेलेक्ट पेंट प्रोग्राम, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड बाय द चिल्ड्रन। बच्चे हमेशा पेंट करते हैं कंप्यूटर में, तो उनको पता होना चाहिए। 1 के बच्चे तो अच्छे खासे हैं ना, वो बहुत समझदार हो जाते हैं, तो उनको पेंट प्रोग्राम कैसे खोलना है ये पता होना चाहिए। और फ्यूचर में यू आर हैविंग दिस प्रोग्राम इन योर सिलेबस ऑल्सो। तो यहाँ से हमने डेस्कटॉप तक सीख लिया। तो डेस्कटॉप के बाद देयर इज़ नथिंग, हम जस्ट स्टार्ट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट प्रोग्राम पे जाने के बाद हम ऑल प्रोग्राम में क्लिक करेंगे। फ्रॉम देयर वी गेट अ मेनू, यानी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। इन दैट चिल्ड्रन वी विल स्क्रॉल द लिस्ट एंड सर्च फॉर विंडो एसेसरीज। हम विंडो एसेसरीज को वहाँ से ढूंढेंगे। विंडो एसेसरीज पे क्लिक करने के बाद चिल्ड्रन हमारे पास साइड में डाउन एरो की होता है। डाउन एरो की पे हम प्रेस करेंगे तो वी विल हैव लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। विंडो एसेसरीज के प्रोग्राम्स हमको मिलेंगे। फ्रॉम देयर यू कैन चूज एनी प्रोग्राम ऑफ योर चॉइस विच एवर यू वॉन्ट टू यूज़, जिसको आप करना चाहते हो। आप वहाँ से और भी गेम्स चूज़ कर सकते हो, गेम्स भी होते हैं। तो दीज आर द 2 कॉमन थिंग्स विच यूजुअली चिल्ड्रन ऑफ योर एज do using the computer. So with this children we have completed the chapter and I hope you all have understood question number E, that is application based question. Now if you are asked to do any such kind of work, you must be able to do, and you all have understood. You will, whenever we switch on a computer or switch off a computer, we will follow step by step method. We will never switch off a computer directly. हम कंप्यूटर को कभी भी डायरेक्टली बंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने आज जो भी पढ़ा, जो भी समझा, आप उसे फिर से एक बार वीडियो देख करके समझेंगे और उसके बाद आप चैप्टर को पढ़ेंगे और you will also learn and understand the words, difficult words which are given in the chapter, and the exercise which we have done here children will be completed in the
बुक इटसेल्फ. तो ये पूरे एक्सरसाइज को आप बुक में ही करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई कंप्यूटर की नोटबुक नहीं है. तो वी डू ऑल द एक्सरसाइजेज इन द बुक इटसेल्फ. सो चिल्ड्रन, with this we have come to the end of this video. Watch the video, complete your work. We will meet once again in our next video. Till then, have a nice day ahead. Thank you.